Highest peaks, jagged ranges, sharp cliffs, enemy-infested, inhospitable terrain. This was the Betalik sector. The 70 Infantry Brigade concentrated on long-term results. Discarding the strategy of frontal assaults where they would have to scale icy peaks in full view of the enemy, they decided to encircle the enemy, cut off their routes of supply from Pakistan, isolate them on heights, and then clear the peaks one by one. And once this happened, the Pakistani collapse was swift. Operations in Betalik sector, notwithstanding the various constraints, were a spectacular success in that the enemy was routed from this sector completely by 8th or 9th of July. That is well before the political and the military negotiations had started. One of the first success stories of Betalik was that of the 12 Jackalai. They had been moved to the area in May. After completing a successful tenure in Siachen, this battalion was on its way to Delhi when orders came reassigning them to the war front. इस 50 दिन के जंग में हमारी बटालियन ने हमारे ब्रिगेड के लिए न केवल यालदौर और गनासौर एक्सिस को क्लियर किया, बल्कि यालदौर और गनासौर एक्सिस के दोनों तरफ जो सबसे ज़रूरी दो पहाड़ियाँ थी, जो कि ब्रिगेड के ऑपरेशंस को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, वो दोनों पहाड़ियाँ 0.5203 और 0.4812 को हमने कैप्चर किया, जिससे कि दुश्मन को एलसी तक खदेड़ा जा सका और ब्रिगेड के आगे के ऑपरेशन सक्सेसफुल हो सके. Once in Betalik, this unit moved out into enemy-held territory carrying large amounts of ammunition, but meager rations. The first success of the Jackalai was at 0.5203. An important feature, not only difficult to scale, but also very difficult to hold, its top was in line of direct enemy fire from 0.5465. न केवल पलटन की ही बल्कि पूरे फॉर्मेशन की जो सबसे पहली अहमियत वाली अचीवमेंट थी वो 0.5203 का कैप्चर था. 0.5203 के ऊपर कैप्चर में हमारे कंपनी कमांडर मेजर संजीव दत्त और उनके टोएसी कैप्टन अमोल कालिया ने जिस रास्ते को चुना, उस रास्ते पर किसी फौजी के आने की शायद संभावना दुश्मन ने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी, और यही कारण था जब पोस्ट के टॉप पर पहुंच गए तब तक पाकिस्तानी को पता ही नहीं था कि यहाँ पहुंच चुके हैं. पर एक बार जब हमारी टुकड़ी वहाँ पहुंच गई, उसके बाद में पाकिस्तान के लिए मरने मारने वाली बात थी, जबकि कैप्टन अमोल कालिया और उसकी पूरी पार्टी पाकिस्तानी आक्रमण को खदेड़ते हुए इस जंग में शहीद हुए. और जो सर्वाइवर दो नीचे आए हैं, उनके जो बयानात है उसके हिसाब से कैप्टन अमोल कालिया पहले अपने पर्सनल वेपन से फायर किया, फिर एलएमजी फायरर के घायल होने पर एलएमजी से फायर किया, और लास्ट में जब एमएमजी फायरर भी दुश्मन की गोली से शहीद हो गया तो उन्होंने खुद एमएमजी फायर करके पाकिस्तान के 6 अटैक करने वालों को मार गिराया. और इस पूरे ऑपरेशन में हमें 16 पाकिस्तानी लाशें मिली, जिससे जाहिर होता है कि कितनी ज़रूरत थी इस पोस्ट को वापस पकड़ने के लिए पाकिस्तानी को. Now having successfully captured 5203, Balotia's men set their eyes on 0.4812. Intricate planning followed in an attempt to take the enemy by surprise. After a final meeting with their SEAL, the men gathered in an area called the MMG. No medium machine gun, this MMG stood for Masjid Mandir Gurdwara, a combined place of worship for these soldiers of the Jackalai who all belong to the Kashmir Valley. 1948 में जब पाकिस्तानी रेडर्स कश्मीर में श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे, तो शेख अब्दुल्ला के वॉलंटियर्स और लोकल वॉलंटियर्स ने जिन ग्रुप्स में वॉलंटरीली ऑर्गेनाइज होकर इन रेडर्स का मुकाबला किया था, ये रेजिमेंट उन्हीं के न्यूक्लियस से 48 के बाद में खड़ी हुई है. शुरू में इसको जेएंड के मिलिशिया के नाम से जाना जाता था, बाद में इसके बहादुरी के कारनामों को देखते हुए इसको रेगुलर आर्मी बना दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री का नाम दिया गया. This Kashmiri force, half Muslim and half Hindu and Sikh, are sons of the soil, and their motivation in clearing the intruders from Kashmir is very personal. This is precisely the reason
that Jack-Light troops have commitment to sort out Pakistanis much more than anybody else. This religious composition not only stands firmly against Pakistani propaganda, but gives the rest of the country immense amount of hope about Kashmir. It sets shining examples of brotherhood for all of India as these troops fight together and pray together. ये एक वाकई सीन देखने लायक होता है जब मौलवी, पंडित जी और ग्रंथी अपने अपने धर्म की पूजा कर रहे होते हैं और अपने अपने ऊपर वाले से पलटन की हिफाजत की बातें कर रहे होते हैं। यही कारण है कि किसी भी हमले में जाने से पहले मैं अपने जवानों को बताता हूँ, जिस फौज का रखवाला अल्लाह, ईश्वर और वाहिगुरु हो, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और अपने बार बार के एक्शन से पलटन के जवानों ने इसको प्रूव कर दिखाया है। The inherent faith this unit had in their motherland was India's most obvious defense against Pakistan's chance of jihad. जहाँ तक जहाद का सवाल है, हमारी मुतबरक किताब कुरान पाक और हदीस के मुताबिक जहाद इन्हें उसके साथ हुक्म हुआ है फी सबीलिल्लाह, इन्हें अल्लाह की राह में जहाद करना। उस जहाद के लिए तब हुक्म है अगर हमारे मज़हब को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा हो। जहाँ तक पाकिस्तान का जहाद के नाम से हमारे इस मुल्क में आने का सवाल है, ये तो एक सियासती जंग है और अपना वरासती जंग है, ज़ाती मुफाद है और इसके लिए हम हर हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। And finally, on 4812, when Indian Muslim fought Pakistani Muslim, religious bigotry gave way to patriotic fervor. जब उनके हम नज़दीक पहुंच गए तो वो गालियाँ देना शुरू हो गया। मैं बोला अगर आपने माँ का दूध पिया है, आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, तो बाहर निकलो, आज देखा जाएगा क्या होगा। The actual assault on 4812 began on the night of the 1st and 2nd of July. 4812 को कैप्चर करने के लिए हमने 5 कॉलम्स में अटैक प्लान किया था, जिसमें कि एक कॉलम का नेतृत्व कैप्टन क्लिफर्ड कर रहे थे। पहली रात को एक्शंस में कैप्टन क्लिफर्ड की पार्टी जब दुश्मन के डिफेंसेस के पास पहुंची तो दुश्मन ने पूरी फायरिंग आरटी, मोटर और स्मॉल आर्म्स कैप्टन क्लिफर्ड की पार्टी के पास किया और इस एक्शन में क्लिफर्ड के जब 7 जवान शहीद हो गए तब उन्होंने खुद अपना हथगोला निकालकर दुश्मन के जो एक यूएमजी जो फायर कर रही थी उसके अंदर फेंका। इसका भी कोई असर न होने पर क्लिफर्ड चिल्लाते हुए दुश्मन की यूएमजी का बैरल को खींचने के लिए उस बंकर के सामने पहुंचे और उस बैरल को उन्होंने अपने हाथ से बाहर खींच निकाला और बैरल यूएमजी शांत होगी, लेकिन साथ के किसी एक बंकर से एक स्नाइपर की गोली से क्लिफर्ड शहीद हो गए। Despite the setback to Clifford's company, the 3 companies tasked to capture the top met little resistance in their assault. By the morning of the 2nd of July, the peak was in Indian hands with the tricolor and the flag of 12 Jackal-Eye fluttering proudly on top. इस एक्शन में दुश्मन के 26 जवान शहीद हुए, जिनको कि हमने बड़ी बाइज्जत मुस्लिम राइट्स के अनुसार उनको बरियल किया उनका। At the height of 4,800 meters, where breathing is difficult and the terrain is rocky, to attempt to bury the enemy is beyond the call of duty. It is certainly a lesson in ethics and morality to those officers in that army that returned the bodies of Saurabh Kalia and his colleagues to India. At 4812, Balotia's men captured a very large number of documents and arms, but their most important catch was Nayak Inayat Ali, the first Pakistani prisoner of war captured by the Indian army. मुझे अभी भी याद है जब 1 जुलाई को शाम को लगभग 7 बजे मेजर दीप पाठक, जो कि एक कॉलम के कमांडर थे 4812 को कैप्चर करने के लिए, उन्होंने मेरे को खबर दी कि उन्होंने पहला पाकिस्तानी प्रिजनर नायक इनायत अली पकड़ा है। Another very useful seizure was a diary written by a young Pakistani officer, Captain Muhammad Mazullah Khan Sumbal. This diary was very useful in providing an insight into the planning and preparation of the Pakistani army. It also revealed a strange coincidence. कि एक इत्तेफाक की बात है कि सियाचिन ग्लेशियर में कैप्टन क्लिफर्ड 21,000 की ऊंचाई पर जिस पोस्ट पर पोस्ट कमांडर थे, उस पोस्ट के अपोजिट जो पाकिस्तानी पोस्ट थी
उसके ऊपर जो ऑफिसर था वही ऑफिसर पॉइंट 4812 पर भी था। वहाँ पर कैप्टन क्लिफर्ड ने पाकिस्तानी पोस्ट को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। 4-5 महीने के बाद में फिर एक बार 5 NLI 12 जैकलाई के आमने सामने थी और इसमें मुझे ये कहते हुए फ़ख्र हो रहा है कि न केवल एक बार बल्कि 2-2 बार 5 NLI को हमने नाकों चने चबाए। The whereabouts of the writer are unfortunately not known. We know he had a loving family back home. We know he liked chocolates and cigarettes. We know he visited the site of Nachiketa's air crash. We know he was a young man full of hope and ambition. We don't know if he survived. जिस ऑफिसर ने ये डायरी लिखी है उसकी 1 जुलाई के बाद में एंट्री नहीं है, तो हो सकता है कि 1 जुलाई के अटैक के बाद में वो इस पोस्ट से निकल गया हो, परंतु इस डायरी के हिसाब से जो पोस्ट कमांडर उस टाइम थे कैप्टन कमर, उनकी बॉडी 4812 पर उनके बंकर के सामने मिली। ये कंपनी कमांडर कैप्टन कमार का लिविंग बंकर, जिसकी आप आगे से अगर अभी देखें, ये जो दीवार है ये उसको रास्ता बिल्कुल पतला है, ये दीवार उसको फायर से प्रोटेक्शन देता है। ऊपर अगर आप इस छत को देखें कितना मोटा है, किसी भी प्रकार के आरटी और मोटर शेल से एकदम से सुरक्षित है। इस पे कम से कम भी 2 लोग सो सकते हैं। अगर आप इस तरफ देखें तो एक और सोने की जगह है, जहाँ पे अभी आप स्लीपिंग बैग देख सकते हैं। कम से कम 3 लोग इस संगड़ के अंदर आराम से रह सकते थे, चाहे कितना भी आरटी शेलिंग या मोटर शेलिंग होता रहे। Despite the security and safety, 4812 fell. In other areas, avenging Major Sarvanand, the one Bihar captured point 4268 and other important features in and around the Jubar Hills complex. In Batalik Yaldor sector, the turning point came the moment Khalubar Ridge was captured. And the lion's share for capture of Khalubar Ridge goes to 111 GR under the leadership